So now functions associated with the auxin. The first function which I will be discussing here, that is cell elongation. Auxin cell elongation देखिए कैसे करेगा, because it will stimulate, it will enhance the cell wall enlargement. तो देखिए क्या क्या steps enlargement में involved होंगे. Now auxin has the ability to make the cell wall acidic. Yes, it will make the cell wall of the cell acidic. और जैसे ही सेल वॉल के अंदर pH कम होगा तो सेल वॉल में एक एंजाइम एक्टिवेट होगा. द नेम ऑफ द एंजाइम that is expansin. Yes, this enzyme, it is activated under the acidic conditions. So you please see here, ये मैं सेल वॉल का कुछ पार्ट बना रही हूं. What are these? These are cellulose microfibrils, right? The cellulose microfibrils, they are joined with the help of hydrogen bonds. Yes, these are hydrogen bonds. तो ये जो white वाले structures दिखाए हैं, these are cellulose microfibrils, right? और ये जो दिखाए हैं, these are हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब एक्सपेंसिन ने क्या करना, एक्सपेंसिन विल ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे. सो द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल नेटवर्क इट विल लूजन अप. सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल नेटवर्क इट विल लूजन अप. अब नेटवर्क लूजन अप होगा तो इट मीन्स अब वहां पर स्पेस बन जाएगी और इस स्पेस के अंदर ऐड होगा न्यू सेल वॉल मटेरियल. स्पेस के अंदर ऐड होगा न्यू सेल वॉल मटेरियल विच विल रिजल्ट इन द सेल वॉल enlargement. Now cell wall enlargement will ultimately result in the cell elongation, cell enlargement, right? तो ये जो सेल वॉल मटेरियल ऐड होने की वजह से सेल वॉल की enlargement होगी, which will ultimately lead to the elongation of cell. So it means auxin has the ability to cause the cell elongation. कैसे करेगा cell elongation? By creating acidic conditions in the cell wall. That's why this mechanism of cell elongation, it is known as acid growth hypothesis. Right? So after the cell elongation, let's see what is the second function. Now second function of the auxin is that it promotes apical dominance. Yes, you can write down the definition of apical dominance. Apical dominance is presence of apical bud inhibits the growth of lateral bud. Yes, apical dominance means apical bud suppress the growth of lateral buds. Right? So now we will try to understand this. So here I am forming shoot. This is shoot. Right? The characteristic feature of shoot, presence of the nodes and internodes, and at the nodes here I am forming buds. These are lateral buds. Right? और ये जो टिप है ये एपिकल बड रिप्रेजेंट कर रहा है.
जस्ट नाउ आई हैड डिस्कस कि जो ऑक्सिन का सिंथेसिस है वो शूट की टिप पर होता है और रूट की टिप पर होता है। तो शूट की टिप पर ऑक्सिन फॉर्म होगा। You know that auxin is a base-seeking hormone. From the apex, it will move towards the base. It will move in the lateral buds. Now, the lateral buds, they are sensitive to auxin. Yes, the high concentration of auxin that inhibits the growth of lateral bud. तो apical bud के अंदर जो auxin बना वो ट्रेवल करेगा नीचे इन दी लेटरल बड। अब ये जो लेटरल बड्स दे आर सेंसिटिव टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, सो दिस विल इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। अब लेटरल बड की ग्रोथ इनहिबिट होगी तो इट मीन्स द लेटरल बड नाउ दे कैन नॉट स्प्राउट। स्प्राउटिंग नहीं होगी तो ब्रांच फॉर्मेशन, लेटरल शूट फॉर्मेशन दैट इज इनहिबिटेड। नाउ ऑक्सिन लेटरल बड के अंदर क्या करेगा ऐसा जिसकी वजह से लैटरल शूट की फॉर्मेशन बंद हो जाएगी? द ऑक्सिन इट इनहिबिट्स डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये बात समझ आ रही है? ऑक्सिन इट विल इनहिबिट द डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, thus preventing the formation of branches on the shoot। अब एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यहां पर कि ये जो मेन स्टेम है, इस मेन स्टेम की ग्रोथ किसकी वजह से होगी? ऑक्सिन की वजह से। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ मेन स्टेम, but high concentration of auxin prevent the formation of lateral stem or branches। तो high concentration of auxin की वजह से main stem की तो growth promote होगी, but it will inhibit the lateral shoot formation। Now, अगर हम इस apical bud को remove कर देते हैं, yes, इस एपिकल बड को रिमूव कर देंगे, तो एपिकल बड को रिमूव करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सिन इट विल डिक्रीज। अब लेटरल बड के अंदर जब ऑक्सिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, सो नाउ द लेटरल बड्स दे विल स्प्राउट एंड फॉर्म द ब्रांचेस, मींस दिस सिनेरियो विल बी देयर। एपिकल बड को रिमूव करा, एपिकल बड को रिमूव करा, रिमूव करने की वजह से ऑक्सिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई लेटरल बड के अंदर। नाउ द लेटरल बड दे विल स्प्राउट फॉर्मिंग द ब्रांचेस लाइक दिस। The removal of apical bud, this is known as pruning, or you can also call it as decapitation। Yes, क्या आप pruning का कोई significance सोच सकते हैं कि ये जो pruning है ये कहां पर काम आएगी? pruning काम आएगी टी प्लांटेशन के अंदर। इट इज यूज्ड फॉर दी हेज मेकिंग, क्योंकि प्रूनिंग की वजह से ब्रांचेस, यस, द लेटरल शूट इन द प्लांट दैट विल इंक्रीज। सो प्रूनिंग विल डेफिनेटली हेल्प इन द ट्री प्लांटेशन। टी प्लांटेशन, and along with that it will help in the hedge making। तो यहां पर हमने डिस्कस करा कि कौन सा हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, दैट इज ऑक्सिन।
बट साथ ही में ये भी मालूम होना चाहिए कौन सा हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस को काउंटर एक्ट करता है, दैट इज साइटोकाइनिन. यस, आई एम रिपीटिंग दिस हियर. टू हार्मोन्स, auxin and ethylene, they promote apical dominance and cytokinin counteracts it. So now let's see the next function of auxin here. So now next function, they are responsible for phototropism and geotropism. Now, before starting phototropism and geotropism, we should have some idea about the tropic movements. Now, the tropic movements, they are bending movement, they are curvature movements, which are shown by cylindrical organs. And these movements are due to the differential growth, either towards the stimulus or away from the stimulus. तो ये कौन सी movements हैं? Curvature movements, bending movements. और ये जो bending movement है, they are shown by cylindrical organs. Cylindrical organs like stem, root, and this is due to the differential growth. एक तरफ ग्रोथ ज्यादा, एक तरफ ग्रोथ कम, एंड दीज मूवमेंट्स दे अकर ईदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. Now, in the tropic movements, here we will be discussing two types, that is phototropism and geotropism. Phototropism, as the name suggests, it is the movement induced by light. And geotropism, it is the movement which is induced by gravity. So we can start with the phototropism here. So you take a seedling, right? So let's say the seedling, it is placed in the vertical condition. और ये जो सीडलिंग है इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, लेट्स से इट रिप्रेजेंट प्लिम्यूल, और ये वाला जो एंड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग रेडिकल, राइट? और ये जो सीडलिंग है इसको प्रोवाइड कर रहे हैं हम यूनिलैटरल लाइट फ्रॉम वन डायरेक्शन. यूनिलैटरल लाइट प्रोवाइड करेंगे. अब जैसे इसको लाइट प्रोवाइड करेंगे, लाइट की वजह से जो ऑक्सिन है इसकी मूवमेंट होगी. यस, द ऑक्सिन विल शो द मूवमेंट फ्रॉम द लाइट रिसीविंग एरिया टू द डार्क रीजन. लाइट रिसीविंग एरिया टू द डार्क रीजन, जिसकी वजह से इस तरफ ऑक्सिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, इस तरफ ऑक्सिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, राइट? तो लाइट की वजह से मूवमेंट हुई ऑक्सिन की. ऑन वन साइड, दैट इज लाइट साइड, द कंसंट्रेशन इज लेस. ऑन द अदर साइड, द कंसंट्रेशन इज मोर. दिस इज प्लिम्यूल, एंड यू नो दैट द प्लिम्यूल इट विल फॉर्म द शूट. अब अभी हमने डिस्कस करा था कि शूट की ग्रोथ के लिए ज्यादा ऑक्सिन की कंसंट्रेशन चाहिए. तो यहां पर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहां पर ग्रोथ ज्यादा होगी. यहां पर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम है, यहां पर ग्रोथ कम होगी. एक तरफ ग्रोथ ज्यादा, एक तरफ ग्रोथ कम. इट विल लीड टू द कर्वेचर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, which shows that the shoot is positively phototropic. Now let's see what is the scenario for the radical. You know that the radical, it results in the formation of root. Root की formation होगी. अब root की formation के लिए ऑक्सिन की concentration कम चाहिए, तो यहां पर concentration कम है. अब ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम चाहिए रूट की ग्रोथ के लिए, तो इट मीन्स अब इस तरफ ग्रोथ ज्यादा और इस तरफ ग्रोथ कम.
एक तरफ ग्रोथ ज्यादा, एक तरफ ग्रोथ कम, अगेन आएगा कर्वेचर, बट नाउ अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट, away from the direction of light, which suggests that root is negatively phototropic. Means after illuminating with the light, now this condition is observed. So you can see here that this part is showing curvature towards the direction of light. It means it is positively phototropic. And this part away from the direction of light, it is negatively phototropic. Yes, after the phototropism, now we can see what is geotropism. So now let's discuss geotropism, that is the movement induced due to the gravity stimulus. For this we can take seedling, and now the plant seedling, it is placed in the horizontal direction. Yes, horizontally, and let's say this is plumule. And this one is representing रेडिकल, राइट। अब जैसे हम सीडलिंग को हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे, सो नाउ अगेन देयर इज मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द सीडलिंग टू द लोअर पार्ट। अपर पार्ट से लोअर पार्ट के अंदर ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन, राइट, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, नीचे की तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी लोअर साइड की तरफ। Now you know that plumule, it forms shoot, and for the formation of the shoot, growth of the shoot, the concentration of the oxygen which is required, that is more. तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है? इस तरफ। तो इट मीन्स यहां पर इस तरफ पर ग्रोथ ज्यादा, यहां पर ग्रोथ कम। डिस्कस कर चुके हैं दैट द डिफरेंशियल ग्रोथ रिजल्ट्स इन द कर्वेचर। कर्वेचर कहां पर होगा? अपर साइड की तरफ, मीन्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी स्टिमुलस, which confirms that shoot is negatively geotropic. Now let's see what is the scenario here. अब रेडिकल ने क्या बनाना है? रूट, और रूट की ग्रोथ के लिए द कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड दैट इज लेस। तो यहां पर लेस ऑक्सीजन है और वही रूट बनने के लिए चाहिए, तो यहां पर ग्रोथ ज्यादा, यहां पर ग्रोथ कम। डिफरेंशियल ग्रोथ अगेन कर्वेचर होगा, पर अब कर्वेचर कहां पर होगा? लोअर साइड की तरफ, जो कंफर्म करेगा दैट रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, राइट। तो स्टेम और रूट दोनों शो करती है रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइट एंड ग्रेविटी। और कौन सा हार्मोन इसके अंदर इन्वॉल्व है? दैट इज ऑक्सीजन। दैट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर दिस नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू द abscission. Now abscission is falling off of organs, like falling off of stem, branches, leaves, fruits. Now जब भी ऑर्गन की abscission होगी तो ऑर्गन के नीचे एक डेड जोन बनेगी। दिस डेड जोन इट इज नोन एज abscission zone. सपोज करो ये लीफ है, अगर इस लीफ का एब्सेशन होना है तो नीचे एक डेड जोन बनेगी। दिस डेड जोन इट इज नोन एज एब्सेशन जोन, राइट। नाउ दिस एब्सेशन जोन इट इज मेड अप ऑफ द टू लेयर्स। जो अपर लेयर है जिसको मैंने ऐसे शेड करा है, यस दिस इज अपर लेयर। Upper layer it is separation layer,
सेपरेशन लेयर के अंदर बनेंगे एंजाइम्स लाइक सेलुलेसेस, पैक्टिनेसेस. ये जो सेलुलेसेस है, पैक्टिनेसेस है, दे हैव द एबिलिटी कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल. तो ये सेल वॉल को ब्रेक करेंगे, सेल वॉल की ब्रेकेज होगी तो ये वाला पार्ट जो है ये ब्रेक हो जाएगा, पार्ट ब्रेक होगा और ये जो लीफ है इट विल फॉल ऑफ. यस, दिस इज हाउ द लीफ विल फॉल ऑफ. अब जैसे लीफ फॉल ऑफ होगी तो नीचे वाला पार्ट एनवायरमेंट में एक्सपोज हो जाएगा. एनवायरमेंट में एक्सपोज होगा तो इट मीन्स द चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन, चांसेस ऑफ वाटर लॉस दैट विल इंक्रीज. तो इसको बचाने के लिए यहां पर भी एक लेयर बनी है. दिस इज सेकेंड लेयर. यस, दिस सेकेंड लेयर इट इज नोन एज protective layer. Yes, it is a protective layer which protect the plant from the infection, water loss, prevention, and this protective layer has thickening of compound like superin. So you know that a superin, it is impermeable to the water. सो वाटर लॉस प्रिवेंट होगा और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएगी. तो जब भी एब्सेशन होना है किसी भी ऑर्गन का तो नीचे बनेगी एक जोन दैट इज एब्सेशन जोन एंड दिस एब्सेशन जोन इज मेड अप ऑफ टू लेयर. द अपर वन इज सेपरेशन एंड द लोअर वन इज प्रोटेक्टिव लेयर. अब एब्सेशन जोन बननी है कि नहीं बनेगी, this is dependent upon the auxin concentration. Yes, this can be explained with the help of auxin gradient theory, which was given by the scientists Adicott and Lynch. तो एब्सेशन जोन बननी है कि नहीं बननी, this can be explained with the help of the auxin gradient theory. The theory explains that stem और leaf इन दोनों के अंदर हम auxin gradient find करेंगे. अगर लीफ के अंदर दैट इज दिस वन ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और स्टेम के अंदर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम है तो ऐसी कंडीशन के अंदर एब्सेशन नहीं होगा. पर अगर दोनों तरफ स्टेम साइड और लीफ साइड ऑक्सिन की कंसंट्रेशन सेम है, ऐसी कंडीशन के अंदर जोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी. द जोन फॉर्मेशन विल बी स्टार्टेड एंड इफ द सिनेरियो इज रिवर्स, द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सिन इन द स्टेम साइड इज हाई एंड द लीफ साइड इज लो, देन what will happen? Abscission of organ will occur definitely. तो ऐसी कंडीशन के अंदर this organ that will fall off, shedding of the organ is there. So the concentration of the auxin on the stem and leaf side decides the abscission. So this theory, what you will call it as auxin gradient theory. Now I would like to tell you, जब लीफ के अंदर ये कंडीशन है विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सिन ग्रेडियंट, अब लीफ के अंदर इथाइलिन काम करेगा. यस, द इथाइलिन विल वर्क. इथाइलिन इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सेलुलेजेस, पैक्टिनेजेस. दीज विल ब्रेक द सेल वॉल. सेल वॉल का ब्रेकेज करेंगे एंड दिस विल रिजल्ट इन शेडिंग ऑफ ऑर्गन. So it means there should not be any confusion. हम एब्सेशन की बात कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि एब्सेशन करने के लिए जो मेन हार्मोन इन्वॉल्व है दैट इज एब्सिसिक एसिड. नो, द मेन हार्मोन which is involved for the abscission that is ethylene, because the ethylene has the ability to form the enzymes like cellulases and pectinases. So from this theory it is very much clear that auxin it prevents the young leaf and fruit
फ्रॉम द एब्सेशन मीन्स यंग लीफ और फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करेगा. After the abscission, now we can discuss the next physiological function associated with the axin, that is the herbicidal activity. Next one, that is herbicides. Yes, they act like herbicides. Now herbicides, they are the chemicals which kill weeds. Yes, they are weedicides. और जिन ऑक्सिन्स को हर्बिसाइड्स की तरह हम यूज करते हैं, दैट इज 2,4-D एंड 2,4,5-T. These two herbicides, they can kill dicots. Yes, they can kill broadleaf plants. Right? But they are insensitive for the monocots. That is narrow leaf plant. तो डाइकॉट को किल करेंगे पर मोनोकॉट्स के लिए इनसेंसिटिव है. तो इट मींस अगर कोई मोनोकॉट की फील्ड है, जैसे राइस हो गया, वीट, सीरियल क्रॉप की फील्ड है, और अगर वहां पर कोई डाइकॉट वीड प्रेजेंट है, so there you can easily utilize these two herbicides which are auxin based. Now the question arises here कि डाइकॉट के लिए सेंसिटिव और मोनोकॉट के लिए इनसेंसिटिव क्यों? क्योंकि डाइकॉट्स दे कैन इजिली एब्सॉर्ब दीज टू ऑक्सिन्स. The synthetic auxins, they can be absorbed, but the absorption by the monocots, it is poor. डाइकॉट एब्सॉर्ब करेंगे तो इफेक्ट होगा, और मोनोकॉट्स के लिए एब्सॉर्प्शन पुअर है. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज lateral root formation. Just now I had discussed that शूट की ग्रोथ के लिए, मेन शूट की ग्रोथ के लिए जो ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन चाहिए, दैट इज 10 ppm, और मेन रूट की ग्रोथ के लिए, और आई कैन राइट प्राइमरी रूट की ग्रोथ के लिए जो कंसेंट्रेशन चाहिए ऑक्सिन की, दैट इज वेरी वेरी लेस, दैट इज दिस मच. अगर ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन इससे ज्यादा है, ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन इससे ज्यादा है, सो व्हाट विल हैपन अंडर दीज कंडीशन? द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी रूट, it is inhibited, but the growth of lateral root, that is branches, root branches, and adventitious root, that is promoted. Very very important point. तो जैसे ये मैंने प्लांट बनाया, प्लांट के अंदर ये प्राइमरी रूट है, राइट, और ये लैटरल रूट्स हैं. तो अगर कंसंट्रेशन इससे ज्यादा है तो प्राइमरी रूट की ग्रोथ इनहिबिट होगी, पर सेकेंडरी रूट, लेटरल ब्रांचेस, इनकी ग्रोथ प्रमोट होगी. नाउ हाउ दिस विल हैपन? अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा है, सो दिस ऑक्सिन इन द रूट, इट विल स्टिमुलेट द सेल्स ऑफ पेरिसाइकल. ये आपने पढ़ा हुआ है एनाटॉमी के अंदर, दैट जो लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज फ्रॉम पेरिसाइकल. तो ऑक्सिन, इट विल स्टिमुलेट द सेल्स ऑफ पेरिसाइकल, एंड व्हेन द सेल्स ऑफ द पेरिसाइकल दे आर स्टिमुलेटेड, दे विल स्टार्ट शोइंग डिवीजन. डिवीजन होगी, ऑक्सिन सेल्स शो करेंगे, एंड दिस विल इन टर्न रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स. तो सीक्वेंस समझ आ रहा है? अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन इस वैल्यू से ज्यादा है, सो ऑक्सिन दे विल नॉक, दे विल स्टिमुलेट द सेल्स ऑफ पेरिसाइकल. पेरिसाइकल के सेल डिवीजन शो करेंगे, एंड दिस विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स.
अब ये जो फीचर है ना ऑक्सिन का, लैटरल रूट, एडवेंटिशियस रूट बनाना, इस फीचर को हम यूज करते हैं फॉर द रूटिंग ऑफ कटिंग, राइट। जो स्टेम कटिंग, इस स्टेम कटिंग को हम ऑक्सिन के सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। सो सी दिस इज स्टेम कटिंग, राइट। इसको हमने डिप करा ऑक्सिन के सोल्यूशन के अंदर, यस। तो ऑक्सिन के सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, ऑक्सिन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट। तो यहां पर रूट फॉर्मेशन होगी, तो स्टेम कटिंग ऑलरेडी थी, रूट ऑक्सिन ने बना दी है, तो ये बन गया प्लांट, और इस प्लांट को हम सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। सो मीन्स इट कैन बी यूज्ड फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. So means one of the important function of the auxin is that it is used for the synthesis of root. Yes, it is involved in the rooting of cutting. That's why this hormone, it is known as RSH. RSH, that is root setting hormone, or the another one, it is known as Rooton, right? So after the lateral root formation, now here I will be discussing some more function associated with the auxin. Another function of the auxin is that it promotes parthenocarpy. Parthenocarpy, that is formation of fruit without fertilization, and auxin promotes induce parthenocarpy in the tomato. तो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करेगा टोमेटो के अंदर, और ज्यादातर जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट फॉर्म होते हैं दे आर विदाउट द सीड्स, दे आर सीडलेस. नेक्स्ट फंक्शन, auxin results in the formation of root nodule in the लेग्यूमिनस प्लांट. यू नो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर रूट नोड्यूल बनाने के लिए चाहिए सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन कैसे होगी? सेल डिवीजन होगी ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द प्लांट एंड बैक्टीरिया. प्लांट ने क्या सिक्रीट करना है जिसकी वजह से सेल डिवीजन होगी? दैट इज ऑक्सिन. और बैक्टीरिया सिक्रीट करेगा साइटोकाइनिन. ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, बोथ ऑफ देम दे विल कॉज सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल विच इज द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. नेक्स्ट वन, ऑक्सिन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ dwarf shoots in apple plant, and the auxin which is used for this, that is NAA, नैप्थलिन एसिटिक एसिड. तो अगर नैप्थलिन एसिटिक एसिड का स्प्रे करेंगे एप्पल के अंदर तो ड्रॉप शूट का नंबर इंक्रीज होगा, और एप्पल के अंदर जो फ्रूट्स फॉर्म होते हैं, दीज फ्रूट्स दे आर फॉर्म्ड ऑन द ड्रॉप शूट. तो इसका मतलब इससे फ्रूट की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी. नेक्स्ट फंक्शन, Now the auxin, it is not a flowering hormone. ये प्लांट को जनरली वेजिटेटिव स्टेज के अंदर ही रखता है, पर कुछ प्लांट्स के अंदर इट कैन इंड्यूस फ्लावरिंग. वन एग्जाम्पल फॉर दिस इज पाइनएप्पल एंड द अनदर वन दैट इज लीची. अगर हमने प्लांट के ऊपर ऑक्सिन का स्प्रे करा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स. सो यू कैन से दैट ऑक्सिन हैज फेमिनिश इफेक्ट. अनदर वन, जो ग्रासेस हैं, ग्रासेस के अंदर आपको मालूम है जो स्टेम होती है वो वीक है, वीक स्टेम इज देयर. पर अगर हमने ग्रासेस के ऊपर ऑक्सिन का स्प्रे करा, सो द स्टेम इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग.
अगर स्टेम स्ट्रांग होगी, सो द बेंडिंग ऑफ स्टेम which is known as lodging is preventing. So it prevents lodging in the grasses, and the auxin which is required for this, that is NAM. Next, अगर प्लांट के अंदर कहीं पर कट आता है, कहीं पर कोई इंजरी होती है, तो वो जो एरिया इमीडिएटली हील अप हो जाता है बाय द सेल डिवीजन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ कंपाउंड दैट इज ट्रोमैटिक एसिड. तो प्लांट के अंदर अगर कहीं कट आया, कहीं इंजरी आई, तो वो जो एरिया है वो हील अप होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रोमैटिक एसिड. एंड यू नो दैट द ट्रोमैटिक एसिड, इट इज अ टाइप ऑफ auxin. Yes, so traumatic acid, it is involved in the healing. That's why you will call it as healing hormone. Next one, auxin, increase sweetness of fruit, increases sweetness of fruit. तो स्वीटनेस ऑफ फ्रूट कैसे इंक्रीज करेगा? जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनको कन्वर्ट करेगा शुगर्स के अंदर. एंड इट इज वेरी वेल नोन टू ऑल ऑफ यू द टाइप ऑफ द शुगर विच इज प्रेजेंट इन द फ्रूट, दैट इज फ्रक्टोज. तो फ्रक्टोज बनने की वजह से जो स्वीटनिंग है फ्रूट की वो इंक्रीज होगी. सो After explaining all this to all of you, now it is very much clear कि ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि वाइडली एग्रीकल्चर के अंदर और हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर यूटिलाइज होता है. सो नाउ आफ्टर द ऑक्सिन, नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट एसिडिक हार्मोन, दैट इज जिबरेलिक एसिड.